Good morning, dear students. So, we were doing probability distribution. In the last video, all of you have seen those theory part, types of variables, discrete random variable, continuous random variable. Then we came to know probability mass function and cumulative distribution function, CDF and PMF. So, once you start this video, it's better to go through the first video because this is just a problems based video today. We will finish all the problems of those that exercise 7.1. So till I believe question number 4 we have already done. Now we'll move to our next question, fifth onwards. We'll see probability distribution and whatever those types where mean value, expected value, variance and all these we have already discussed the theory part. So now we will discuss this question number 4. I believe this is now visible to all of you. 5, question number 5 dear. तो 5 question number देखते हैं and how we will solve this one. Question is, find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die when a success is defined as the number greater than 4 appears on at least one die. So first of all dear, the best way is to first you write the sample space and what are those sample space it is. So that would be the right approach. First you write the sample space of when 2 die is thrown. That will surely give you the correct idea. 1, 1, 2, 1, 3. There will be 36. It will go till 1, 6. Same way 6, 1 and up to 6, 6. This is what the total sample space, which is going to be total number of sample space is 36. Two throw of dice, 2 tosses of a dice, correct? So 2 tosses of die, the sample space is going to be 36. Now we will, the demand of the question is we have to find the probability distribution of the number of successes where number greater than 4 appears on at least one die. So let's say the case when x, capital X, which is equal to small x we write, or when capital X is 0. That means that is 5, 6, 5 and 6 do not appear on any of the dice, meaning is clear. X is 0, that is 5, 6 do not appear on any of the dice, because the question says greater than 4 appears on at least one die. So here if we take the x random variable 0, which means what? 5, 6 do not appear on any of the dice. There will be no 4. In fact, not a single number is greater than 4. So which is similar as 5, 6 do not appear on any of the dice. So those we will collect and we'll count how many of those. So this is going to be when x is 0. So that we will count. Probably this you will get number of x, you can see this is where 5, 6 are not there. So 5, 6 are not there. So 1, 2, 3 up to 4. There are 4. 2, 1, 2, 2, 3, 4. 3, 1, 4. Will take till 4. 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. So there will be 16. Correct? Because 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Fine. And then 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. And finally 4, 1, 4, 1, 2, 4, 3, 4, 4. So those are 16. This is what number of x. Same way, when x, the success, the random variable, it is going to be 1. That is, the meaning will be 5, 6 appear on exactly one of the dice. That you can say 5 or 6
appear one of the dice. One of the dice. Correct? So what are those? So what we can say the number of x? So 5 or 6. So there are, again if you see, 1516, 1516, 3536 and so on, 46, 61, 62. Like this way, if you calculate, you will get again 16. Correct? This is where 5 and 6 appear, either one, either 5 or 6. That will appear is 16. You just write all these and then you can calculate all this. So this will be 16 again. So number of x 16. Finally, when x we are taking 2, that is 5 or 6 appear in both of the dice. 5 or 6. See here in this case, in the second case, what we have written, 5 or 6 appear one of the dice. Now we'll write 5 or 6 appear both of the dice. Appear on both of the dice. Both of the dice. Fine. So how many are these? 5 and 6. So it's very easy to relocate these 5 or 6. Let's say 5, 5. Then we have 5, 6. Then we have 6, 5. And finally 6, 6. So number of x will be here 4. Correct? So this way we can calculate all these number of x. When x is 0, there's 16. Number of x when x is 1, number of x is 16, and then it is 4. So look at this. If you add all three, you will get 36. Now we will draw the probability distribution. Therefore, probability distribution is we draw the table. Correct? First we draw the table like this. Now here we will mention first x, and this is probability of that x. First we'll take 0, where in both the die 4, 5, 6 do not appear. 1, either in one of the dice 5 or 6 appear, and in both the dice 5 or 6 will appear, which is quite natural, greater than 4. So now when x is 0, the probability is going to be, what will happen here? Probability 16 upon 36, because sample space is 36. And when x equals to 1, again number of x is 16. So here also 16 by 36. And for 2, x equals to 2, which is 4 by 36. Or you can simplify it and you can write the simplified form also, like px. Here you can write 4 by 9. Correct? And this is 4 by 9. And this is 1 by 9. See, the sum of this comes 1. So it's a PMF as well as. Correct? So this is what a probability distribution of this question number 5. So we have to read the question properly and then collect the number of x. And you know the sample space, which is 36. So we'll get the probabilities of random variable 0, 1 and 2. These are 16 by 36. For 1, 16 by 36, and for 2, the random variable x equals to 2, it came 4 by 36. So it is 1 by 9. This is what we have to elaborate. Fine. What happens sometimes student, they worried, sir, is it necessary to write all these? It's your call, dear. If you know the total number of x directly, you can write directly, you can draw the probability distribution directly this way also, not a problem. Because these question comes for only 1 mark or max to max for 2 marks. ठीक है? तो आप जैसा भी देखें, ये चीज़ मैंने एलॉबरेट किया है, आप एलॉबरेट करें या फिर डायरेक्टली नंबर ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटीज उसके डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है? सो दिस इज व्हाट योर दिस प्रॉब्लम. गो थ्रू क्विकली. Because I am going to
Solve another question in the same page. क्वेश्चन के सामने रहेंगे हम. X equals to 0, 5, 6 do not appear on any of the dice. That is the meaning. Greater than 4. Then x equals to 1, that is 5, 6 appears one of the dice. And then x equals to 2 when 5, 6 appear on both of the dice. And their number of x is 4 here. And then the probabilities of these random variable is this. Fine. Now we'll move to our next problem, which is question number 6. First, what I am going to do this, I am going to just erase the fifth one, and in this place we will solve question number 6. Meanwhile, all of you go through the question number 6. I am just erasing all these stuffs. Now look at this. Question number 6. Question number 6, it is given from a lot of 30 bulbs, which includes 6 defective. A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. Correct? So what are those random variable? The number of defective bulbs is the random variable. So if you denote this as a x, number of defective bulbs, which is going to be the random variable, so x can take values like 0 defective bulb, 1 defective, 2, 3 and 4. Correct? Because a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Clear? So 0, 1, 2, 3, 4, it becomes the random variable. Now, question, it is given that drawns are done with replacement. Correct? Therefore, 4 drawns are independent experiment. Means, once you drawn, then again you have to replace this. So all are independent here. So if you go with the probabilities of these 4 non-defective bulb, 0, 1, 2, 3, 4, for all non-defective bulb. So what is going to be? Look at this, the probabilities if you take that Px, which I am taking 0. Suppose 0 defective bulbs is there. Means the number of defective bulbs, distribution of the number of defective bulbs. So, and look at this, in 30 bulbs which includes 6 defective. So suppose 30 minus 6 you have replaced 24. So 0 defective bulb, yani that means 24 by what? 30, sample space is 30 into, because since it is replacement, so you have to replace that bulb and then again we will have to see whether all 4 non-defective for all trials. So what will happen? All 4 defective we have to multiply, and all 4 withdrawns are independent event. So in independent, what we do, we multiply the probabilities. So 24 by 30 into 24 by 30. This is what it came when all 4 are non-defective bulbs. This is for non-defective, and here they have says 6 defective. That is why 30 minus 6 we did. So this is what you can say, this probability is probability of all 4 non-defective bulbs. Non-defective bulbs these are. Fine. So x0 we did the same way. Now we'll take probability of x equals to 1, which means 1 defective and 3 non-defective. Correct? This is the meaning.
what we will, what we have to find? One defective and three non-defective bulbs. Correct? So in this situation, what are the probabilities will be? So first, one defective. So out of 6 defective, so 6 upon 30, and rest are non-defective. That means 24 by 30 into 24 by 30 into 24 by 30 plus. So one defective in this lot. Then again, second lot, what will happen? One is non-defective, that is 24 by 30, and then we have 6 by 30. करेक्ट? मीन्स सेकेंड ट्रायल में आपको क्या मिल गया? नॉन डिफेक्टिव मिल गया. सी पहले वाले में देखो, पहले ही आपको मिला तो वो डिफेक्टिव मिल गया, फिर आपने उसको रिप्लेस किया तो रिमेनिंग ऑल सारे क्या आ गए? नॉन डिफेक्टिव. तो उनकी प्रोबेबिलिटीज ये इनटू हो गई, और ये इंडिपेंडेंट ट्रायल है तो प्रोबेबिलिटीज आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. सेकेंड में प्लस के बाद मैंने इसमें लिखा, पहला मुझे क्या मिल गया? नॉन डिफेक्टिव, फिर दूसरा डिफेक्टिव आ गया, फिर तीसरा नॉन डिफेक्टिव आ गया. सो दिस वे वी कैन राइट दिस. नाउ सिमिलरली फॉर थर्ड ट्रायल में इस बार क्या हो जाएगी डियर? दो नॉन डिफेक्टिव मिल जाएंगे. 24 by 30 दो बार, पहले दो ट्रायल में हमें नॉन डिफेक्टिव मिलेंगे और थर्ड टाइम डिफेक्टिव आ जाएगा, into 24 by 30. एंड फाइनली ऑल थ्री फर्स्ट जो हैं वो क्या मिल रहे हैं? नॉन डिफेक्टिव. 24 by 30, 24 by 30, और लास्ट वाला मिल जाएगा डिफेक्टिव वन. ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 1 के लिए हो गया. इन सबों की प्रोबेबिलिटीज हम मल्टीप्लाई करके ऐड और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 4/5 4/5 दिख रहा है, तो ये हो गया टोटल. अगर चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, 256 बाई 625 ये आ रहा है. इसको भी आप 1/5 और ये 4/5 4/5 इंटू करोगे, सब कुछ ऐड करोगे, सो दिस इज ऑल्सो कमिंग 256 अपॉन 625. ठीक है. नाउ विल मूव टू आर 2 defective and 2 non-defective. ठीक है, and then 3 defective, 1 non-defective, और finally all 4 are defective. तो ऐसे केसेस में हमें प्रोबेबिलिटीज निकालते जाना है. पहला तो आपने देख लिया 4 non-defective. ठीक है, फिर हमने देखा 1 defective, 3 non-defective. अब सेकेंड केस में क्या कर लेंगे? थर्ड केस इनफैक्ट x equals to 2, which means probability of 2 defective and 2 non-defective bulbs. So इनके भी प्रोबेबिलिटीज और विथ रिप्लेसमेंट है, उसी तरह से करते जाएं आप. पहला क्या हो जाएगा? 6 by 30 2 डिफेक्टिव, 6 by 30 इनटू बाकी के दो जो हैं वो क्या आएंगे? नॉन डिफेक्टिव. सो दिस इज लाइक दिस, प्लस अब आप 24, ठीक है, दो डिफेक्टिव और दो लिया, फिर रिप्लेसमेंट है आपका. तो रिप्लेसमेंट हो गया, पहला मान लीजिए 24 by 30, या गया एक नॉन डिफेक्टिव, फिर इसके बाद दो सारे डिफेक्टिव आ गए, यानी दो एक बार अपीयर करेगी साथ में. ठीक है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा? 24 by 30 इंटू 24 by 30 नॉन डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव वाले दोनों साथ आएंगे, 6 by 30. ठीक है, 2 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव. और अपीयरेंस जो है उसका वैसे ही होता जाएगा. 1 2 3 4 कितने हो गया? 1 2 3 4. अभी भी स्टिल वी हैव पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, फिर तीसरा डिफेक्टिव, इस तरीके से भी आएगा, एंड चौथा नॉन डिफेक्टिव 24 by 30. फाइन, वेट अ मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ.
थोड़ा सिंसियरली कीजिए, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करना है, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, सो डू इट केयरफुली, डोंट गेट नर्वस। सो थोड़े लेंदी सम्स होते हैं बट यू विल बी एबल टू डू इट। नाउ फर्स्ट सेकंड हमने देख लिया। सो अब आपके पास क्या रह गया, हमने पहला डिफेक्टिव ले लिया था, ठीक है। अब देयर मैं ले लूँगा पहला डिफेक्टिव इनटू टू नॉन डिफेक्टिव, इस साइड आ जाएगा 24/30 इंटू 24/30 और एक आ जाएगा 6/30, ठीक है। एट द एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन विल बी, पहला मैंने 24/30 लिया, फिर 6/30 लिया, सी पोजिशनिंग चेंज करते जाइए, दैट्स इट। 24/30 और इंटू 6/30, ये आ गया x इक्वल्स टू 2 के लिए, मीन्स 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे वी विल गेट समवेयर 96/625, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटीज भी आप देखते जा रहे हैं। 0 के लिए हमें 256/625, 1 के लिए 256/625 एंड 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव के लिए 96/625। नाउ द केस इज x इक्वल्स टू 3 पे, we'll move to now random variable x equals to 3, which means क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रोबेबिलिटी 3 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव होगा, ठीक है, 1 नॉन डिफेक्टिव। सो इस केस में 3 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव कैसे ले लेंगे आप, पहला 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30 इंटू 24/30, ठीक है, ये पहला सिचुएशन हुआ। फिर रिप्लेस किया सब आपने, तो इस बार पहले 2 डिफेक्टिव 6/30 6/30 और एक अपना नॉन डिफेक्टिव आ गया, और लास्ट में फिर एक डिफेक्टिव आ गया, ठीक है। 3 डिफेक्टिव होनी चाहिए, प्लस पहला ही डिफेक्टिव है यहाँ, और देन वी हैव ओनली एक नॉन डिफेक्टिव एंड बाकी के दोनों डिफेक्टिव आ गए, ठीक है, इस तरीके से। प्लस अब आप पहला नॉन डिफेक्टिव ले लेंगे और बाकी तीनों हमारे क्या आ जाएंगे, डिफेक्टिव। दिस वे वी कैन गो, फाइन। So this is what in replacement we do such strategy. So after simplifying on all this, we have 16/625, ठीक है। Now finally all 4 means x equals to random variable 4 होगा, all 4 are defective, means you can say all 4 defectives were, ठीक है, defective, ठीक है। So in this case what will happen, 6/30 6/30 6/30 एंड 6/30 इंडिपेंडेंट ट्रायल हो गए, सारे 4 डिफेक्टिव होने चाहिए, तो 6/30 6/30, सो दिस विल कम 1/625। नाउ फॉर ऑल दिस वी विल राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, नाउ विल पुट इनटू टेबल में, इसको हम टेबल में सब भर दें इसको, which is, look at this, we have random variable for this x 0 1 2 3 and 4, fine, and their probabilities are as it is, as 0 का हमने निकाल लिया 256/625, चाहिए, फाइन। 0 के लिए हमने निकाल लिया 256/625, फिर 1 के लिए भी 256/625, 1 के लिए भी हमारे पास हो गया 256/625, 2 के लिए हमें मिल गया 96/625, 4 के लिए 16/625, 3 के लिए, and 4 के लिए 1/625. So this is what a probability distribution of this problem.
So see there in this question number 6, you have to be very careful what they have mentioned with replacement. This is very important line in this question. When we have replacement, the event becomes independent here. So their independent events, what we do, we multiply the probabilities, correct? For x equals to 0, what we have seen when we have all four are non-defective bulbs, correct? That is the meaning of x equals to 0. So then the probabilities are these. Then we have one defective and three non-defective, and then replacement is also there. So we have these probabilities. फिर हमने दो डिफेक्टिव और दो नॉन डिफेक्टिव लिया, उनके कॉम्बिनेशंस देखें आप, ठीक है. एंड फाइनली वी हैव three defective and one non-defective, and then finally all four are defectives, and then this is what probability distribution. Correct? So this is what your question number 6. Now we will move to our next problem. इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ये प्रोबेबिलिटी आपने स्टैंडर्ड 11 में भी किया है विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले प्रॉब्लम. सो इनकी प्रोबेबिलिटीज ही यहाँ पे निकालना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई दिस सम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्कर. यू कैन सी 3 मार्क बड़े क्वेश्चन में ये आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. Now we'll move to our next question, question number 7. Look at this. And before this, what we will do, we will erase this question number 6, the solution of question number 6. Correct? Meanwhile, आप go through कर लीजिए question को, solution को आपने जो note किया है. Sit with copy pen so that all the question you parallel you write like in class. क्लास में आप कैसे पैरेलल कॉपी करते थे, उसी तरह कॉपी करें, उसको समझें, और डाउट हो तो यू कैन आस्क. जो आप पूछते नहीं हैं कभी, कोई डाउट ही नहीं होता है आजकल आप लोगों को. इट्स अ गुड साइन दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट स्टिल कुछ डाउट हो तो विदाउट हेजिटेशन ऑल ऑफ यू कैन आस्क. Correct? Now, look at this question number. We'll take question number 7. Seventh one. A coin is biased. A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. So, when it is given that coin is biased, so what is going to be the probability of head? Probability of head is going to be 3 times likely as occurs as a tail. See, head is 3 times as likely to occur as tail. So probability of head will be 3 by 4. And then probability of T becomes what? 1 by 4 only. Correct? Since the coin is biased. ठीक है, ये biased coin है. तो head 3 times आ रहा है, तो क्वाइट नेचुरल 3 by 4 होगा. करेक्ट? एंड क्योंकि कॉइन को आपने 2 टाइम टॉस किया है, ट्वाइस इट इज, सो सैंपल स्पेस इज 4. नाउ अब हमें एक्स जो लेना है रैंडम वेरिएबल, व्हाट इट इज बी फॉर द नंबर ऑफ टेल्स. हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है किसके लिए? नंबर ऑफ टेल्स के लिए. सो तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या होगी? 0 टेल, 1 टेल एंड 2 टेल, बिकॉज ट्वाइस आपने टॉस किया है कॉइन को. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 देख ले पहले. प्रोबेबिलिटी ऑफ, यू कैन से x इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मैं इसको x 0 बोलूँ, सो 0 रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? हमें पूछा गया इफ द कॉइन टॉस ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स. दैट मीन्स 0 टेल आने का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स, दैट इज द मीनिंग. दोनों हेड होंगे, देन ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 0. करेक्ट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 by 4 into 3 by 4. Correct? This way we have to multiply.
Now, this is going to be 9 by 16 dear. Now, next is probability x equals to 1 लिया. That means एक टेल होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द टेल टॉस में. तो एक हेड टेल और दूसरा आप टेल हेड बोल सकते हो. इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हेड 3/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू हेड इज 3/4. So total it is going to be 3/8. Finally, x equals to 2, which means both tell दोनों क्या होने चाहिए? टेल होने चाहिए. So both tell में what will happen? 1/4 into 1/4. यही probability होगी, which is 1/16. 1/16. So now we can draw the probability distribution. Probability distribution हम draw कर सकते हैं. रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज मिल गए अपने को. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, लुक एट दिस, x px, x is 0, 1 and 2. x0 की प्रोबेबिलिटी क्या है डियर? 9/16. सेकेंड इज 3/8 एंड थर्ड इज 1/16. 2 के लिए, ठीक है ना, जब 2 टेल्स आएंगे. एंड दिस इज व्हाट अ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 डियर. अच्छे से समझिए. कॉइन इज biased so that head is 3 times as likely as occur as tail. So यहाँ पे biased है तो probability of head क्या हो गई? 3/4 हो गई. तो tail की probability क्या हो गई? ये 1 नहीं लिख के tail head है, tail it is 1/4. So 0 मतलब दोनों ही head, 1 का मतलब head tail या tail head. तो इनकी probability is biased 3/4 into 1/4. यानी ये वापस क्या होगा? ये independent events हो गए ना, क्योंकि वो biased है. आपको मालूम है ये हेड हेड दोनों में हेड ही आना है. तो 3/4 इंटू किया. यहाँ हेड टेल टेल हेड में भी वैसे ही इंटू हो गई. एंड फाइनली 1/4. क्लियर? यस डियर. नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8. 7th इज, आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं डियर. थोड़े बेसिक प्रोबेबिलिटीज के आइडिया क्लियर रहने चाहिए, देन ओनली एडवांस प्रोबेबिलिटी विल बी क्लियर डियर. क्योंकि ये बेसिक प्रोबेबिलिटीज निकालना ये आपने स्टैंडर्ड 11 में कर रखा है. सो कि इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे हुई, करेक्ट, रिप्लेसमेंट वाले प्रॉब्लम. फाइन डियर. आइए, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज दैट? 8th one. See, a random variable x has the following probability distribution. This is given probability distribution. First, determine k, then x less than 3, and when x greater than 3, 4 की probabilities चाहिए. ठीक है? So, since random variable x है तो और ये probability distribution है तो it holds probability mass function. Correct? यानी sum of these pxi's, sum of pi's you can say, or xi you can say, the sum of pi's should be 1 since it is a probability distribution, or you can say PMF also. Understood? Since it has probability distribution of x, PD of x, or you can say it's a PMF, probability mass function. So what we'll do, we'll add the probabilities. add कर लीजिए प्रोबेबिलिटीज को. तो ये आ गया डियर 0 + k + 2k + 2k + 3k, then k square + 2k square + 7k square + k equals to, this is going to be 1. ठीक है? यहाँ से अब हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ये टोटल आ गया डियर 10k square + 9k -1 which is 0. और फिर इसको फैक्टराइज करके k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. दैट इज कमिंग
-1 and 1/10. k we don't have to take negative because k negative होगा तो probabilities negative हो जाएंगे. So k -1 we can't take. So what we'll take? K equals to 1/10. We will going to take the value of k. So the answer of first is k equals to 1/10. Now the second part is of this question is probabilities निकालिए when x less than 3. तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? Probabilities of 0 के होंगे, probability of 1 होगा, प्लस probability of 2 होगा. probability of 0 तो 0 ही है डियर. probability of 1 k है, k की वैल्यू 1/10 आ गई है, प्लस probability 2 क्या है? 2k. 2k means 2/10 since k is 1/10. ठीक है, so this is going to be 3/10 or 0.3, whatever you want to write, you can write. Fine. So this is your second question, answer of the second problem. Now we'll go to the third one. Third one है x greater than 4. X, probability of x greater than 4, strictly greater than 4. So strictly greater than 4, which means what it will be? It is going to be 5, 6, 7. ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 को आप कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यूज डाल के. सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ 5 प्लस दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इक्वल्स टू, वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज k स्क्वायर 1/100. प्रोबेबिलिटी 6 इज 2k स्क्वायर 2/100 प्लस probability of 7 7k square 7/100 plus 1 plus 1/100. probability 7k square plus k, it is k square is 1 plus k, it is k अपने पास 1/10 है. ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके you can get the what you will have here 2 3 7 10 10 20/100 you will get, बिकॉज इसको 10 करोगे तो 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/5. फाइन. सो दिस वे द प्रोबेबिलिटी x greater than 4 is going to be 1/5. Simple, I believe. This is what you can do in this type of a sum. Since probability distribution और PMF होने के कारण इसका सम क्या होगा? प्रोबेबिलिटीज का 1 हो जाएगा. यहाँ से अपने को k निकलेगी, k नेगेटिव नहीं होना चाहिए बिकॉज प्रोबेबिलिटी बिकम्स नेगेटिव देन. Correct? So this is the way we can get all three demand of the question. Now dear, we'll move to our next problem, question number 9, expected value and variance. So we'll recall that expected value, what was expected value, the formula what we have mentioned. इसलिए बोला कि इस वीडियो को देखने के पहले आप थोड़ा वो जो फर्स्ट इसके पहला वीडियो है वो थोड़ा देख लो तो थ्योरी पार्ट याद हो जाएगा. फॉर्मूलाज वगैरह हमने मेंशन किया था तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा. अदरवाइज आई एम गोइंग टू राइट एवरीथिंग, बट सिट विथ कॉपी पेन के साथ बैठिए, नोट कीजिए और समझिए. इट्स ए इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉट सो डिफिकल्ट. प्रोबेबिलिटीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो तो इसके अंदर सम्स बड़े सिंपल आपको दिखेंगे और इजीली यू कैन डू इट. Now look at this, the question number 10th. In fact 9 it is, question number 9. So dear, इसमें एक्साइज दिए हुए हैं, उनके प्रोबेबिलिटीज हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए. So all of you aware the expected value what we say EX से डिनोट करते थे. This is nothing but summation of XI/PI है ना, रैंडम वेरिएबल और उनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट XI/PI. एंड वेरिएंस के लिए हमने क्या कहा था? वेरिएंस इज
This is a formula of variance. Variance is EX. EX स्क्वायर करते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल x उनका होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट वेरिएंस. तो ये दो रिजल्ट है हमारे पास. तो इस तरह के सम को करने के लिए बेटर है कि आप टेबल बना के बनाएं. तो दैट वुड बी ग्रेट. लुक एट दिस, वी आर मेकिंग द टेबल. x हमने इसको रख लिया यहाँ पे, इनकी प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ रख लें सेकेंड कॉलम में. थर्ड कॉलम में हम इनके एक्स आई पी आई कर लें. एक्स आई एंड पी आईज. एक्स इक्वल्स टू यहाँ एक्स आई कर सकते हैं, पी आईज मतलब पी एक्स आई कर दीजिए. दैट मीन्स एक एक एलिमेंट के प्रोबेबिलिटीज. फिर यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का भी एक टेबल बना लें. एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपने को ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएबल का भी चाहिए. और फिर पी आई एक्स स्क्वायर भी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर आई. ठीक है, तो ये अपने को 5 कॉलम रेडी करने होंगे. ठीक है. सो देन ओनली वी कैन गेट वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है. सो विल राइट ऑल दीज इंफॉर्मेशन. फर्स्ट इज -2, -1 वैल्यूज डालते जाएंगे और कॉलम और इसको बड़ा करते जाएंगे आप. -1 के बाद देयर क्या है 0, then we have 1 and then we have 2. ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गया. इनके प्रोबेबिलिटीज अब लिख देंगे, इनके सम भी हम निकाल लेंगे. सो प्रोबेबिलिटीज दिए हुए हैं डेयर 0.2, -1 is 0.3, 0.1, 0.15. See, without calculator we have to do these calculation, so be carefully, you have to multiply and divide all these. So -0.4 minus 0.3, this is 0, this is going to be 0.15 and this is 0.50. Correct. Now x square is 4 here. This is 1, 0, 1 and 4. फिर एक्स स्क्वायर को पी आई से इंटू कर लें, दैट इज 0.8 and then we have 0.3, then we have 0, this is 0.15 and this is going to be 1. सबके सम भी आपके सामने दिख जाएंगे. यहाँ पे आप सम देख लो इसका, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई. इसको आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये समवेयर -0.05 आ रहा है, -0.05. और इनके भी सम देख लीजिए, समेशन पी आई एक्स स्क्वायर आई. सो दिस इज व्हेन यू ऐड ऑल दीज यू विल गेट 11, 12, 2.25. फाइन. ये अपने को सम पी आई एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स आई पी आई, वी गॉट इट. एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होगा वो दैट इज गोइंग टू बी 1 फॉर श्योर. समेशन ऑफ पी आई क्या होना है, 1 ही होगा. ऐड करोगे सभी को तो. सो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स. सो ई एक्स विल बी समेशन पी आई एक्स आई. करेक्ट. तो समेशन पी आई एक्स आई हमने निकाला है डियर -0.05. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू. एंड देन वेरिएंस विल बी ई. फॉर्मूला देख लीजिए आप, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ई एक्स स्क्वायर हमने निकाला है डियर 2.25. दिस इज 2.25 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू मिली है -0.05 इसका होल स्क्वायर. सो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लें. सो दैट इज 2.25 माइनस this is going to be 0.0025. फाइनली अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 2.2475 you will get. Correct. So this way expected value and variance you can calculate. Correct.
चार्ट प्रिपेयर करके कीजिए तो इट विल बी ईजियर। चार्ट बना के कीजिए। जब आपके क्वेश्चन में वेरिएंस और एक्सपेक्टेड दोनों हैं, सो यू विल हैव 5 कॉलम्स। एक्साइज के होंगे, एक पी एक्स आई होंगे, एक्स आई पी आई, फिर एक एक्स स्क्वायर का कॉलम और एक पी आई एक्स स्क्वायर का कॉलम, एंड देन समेशंस निकालोगे और देन एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस यू कैन कैलकुलेट। एंड फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट हियर टू रिमेंबर, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला और वेरिएंस का। अगर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ दिया गया तो आप वेरिएंस को स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, दैट बिकम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर, जो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस वाले बैक क्वेश्चन है। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, 10th वन। थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर दूं सो दैट आपको ये विजिबल दिखेगा। यस, इसको थोड़ा और इस साइड ले आऊं। गुड, दिस इज राइट हियर, ये विजिबल है। चलिए, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। लुक एट दिस, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस of x where x is the number obtained and uppermost face when a fair die is thrown. Correct? So die जब थ्रो करोगे तो uppermost face में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6, उनके प्रोबेबिलिटीज होंगे। ठीक है, और देन हमें अपने को उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस बनानी है। तो क्वाइट नेचुरल आप वैसे ही कीजिए, टेबल बना लीजिए, दैट वुड बी द राइट अप्रोच। और हमने डिस्कस किया है कि अभी 5 कॉलम बनाने हैं आपको इसमें। ठीक है, 3 4 एंड 5। ठीक है, अब अपने को देखना है कि एक्साइज भी है, ये आपके एक्साइज हो गए, x इक्वल्स टू एक्स आई लिख सकते हैं, पी आईज लिख दीजिए, फिर पी आई एक्स आई निकाल लीजिए, देन एक्स स्क्वायर कीजिए इसको, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक्स स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर आइज, एंड देन पी एक्स स्क्वायर आइज। ठीक है, अब हमारे पास अपर मोस्ट फेस है, डाई हमने थ्रो किया है, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, 4 5 एंड 6, इन सबों की प्रोबेबिलिटीज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सो 1/6, दिस इज अगेन 1 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आनी है। ठीक है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/6 1/6। अब पी आई एक्स आई देख लें तो 1/6 2/6 3/6 4/6, ऐसे ही फॉर्म में रहने दीजिए, सिंप्लीफाई मत कीजिए, 4/6 5/6 ऐसे ही रखिए, इवन 6/6 ऑल्सो, तो ऐड करने में ईजी होगा। तो हमें समेशन पी आई एक्स आई मिल गया यहाँ पे, हाउ मच पी आई एक्स आई, ऐड कर लो इसको। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 6 10 15 21/6, 21/6। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर में देख लेते हैं, 1 4 9 16 25 36, और इनके पी आई से इंटू कर ले, 1/6, then 4/6, then 9/6, 16/6, 25/6 and 36/6। इनका सम देख लें, समेशन ऑफ पी आई एक्स स्क्वायर आई, इनका सम हो गया डियर, दिस इज व्हाट टोटल, अगर आप इसको ऐड करते हो समवेयर 1/6 कॉमन ले लो, 5 14 30 and this is 91, it will come 91/6। ठीक है, सो ये आ गया समेशन में। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू पे आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन पी आई एक्स आई, जो अपने को मिल गया व्हाट
21/6, इसको डिवाइड करके लिख लीजिए, दैट इज समवेयर 3.5। वेरिएंस निकाल लें इसका, वेरिएंस विल बी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर टोटल का, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्लियर है, 91/6 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ये अपने पास 3.5 है डियर, विच इज 7/2 कर सकते हो, तो ये 49/4 आ गया। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इज प्रॉब्ली 35/12 दिखता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2.9167 आ जाएगा आंसर। So this is your variance for this question number 10, and as well as expected value. Fine. Now we will move to our next problem. Look at this. I think question number 11 you will be able to do it. Find the mean number of heads in 3 tosses of a pair coin. इसका आप मेरे ख्याल से 11th आप कर सकते हो। 3 tosses of a fair coin. Number of heads. तो 0 heads, 1 head, 2 head, 3 head. Because sample space तो 8 आएगा, उसकी probabilities अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 11th I believe you can do it yourself. This is homework. आप try करो and let me know the answer. The answer is of this problem is given 1.5. तो आप मैच कीजिए and show me. अगर डाउट हो तो पूछिए. So 11th all of you try yourself this 11th one. क्या निकालना? मीन, ओनली पी आई एक्स आई, सम ऑफ पी आई एक्स आई निकालें आप। एक्स में आपके क्या क्या आएंगे? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। उनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगे? 0 हेड क्या नंबर ऑफ हेड्स है ना, तो ये 1/8, 1 हेड कितना आ जाएगा? 3/8, 2 हेड्स इज 2 हेड्स विल बी 3/8 एंड 3 हेड विल बी 1/8। इनटू कर लो इनको, सम ऑफ पी आई एक्स आई कर लें, निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। दिस इज द हिंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. डू इट ऑल ऑफ योर सेल्फ एंड शो मी एनी डाउट, देन आई विल solve this one. Now we'll move to our next sub here, question number 12. Look at this. 11 आप होमवर्क में रख रहे हैं और 12th अब हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. Look at this. श्योरली आप 11th क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे डियर. It's simple one. You will be able, I have provided you the hint also. Hint भी आपको मैंने दिया हुआ है 11 का. So attempt the 11th one. ये चार्ट अगर मैं रहने देता हूँ वो फिर वही हो जाता है, उसमें किचकिच होने लगता है. So in each sum we'll have to prepare a new chart. Yes, so we'll have a next sum. It is question number 12 here. 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectation of x. Means find the expectation of x means expectation का मतलब expected value, ex चाहिए, ठीक है। और x denotes the number of sixes. So number of sixes जो हैं वो इसमें कैसे कैसे होंगे, तो आपको सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ सिक्सेस में पहला क्या होगा कि 0 6, ठीक है। 2 डाइस आर थ्रोन ना, तो एक में होगा कि जब 2 डाइस थ्रो किया, एक में 0 6 होंगे, एक में 1 6 मिलेगा और दूसरी दोनों में दोनों 6 आएंगे। तो अपने को हमने इस तरह के सम पहले भी पीछे भी कर लिया था, तो आई बिलीव आपको सैम्पल स्पेस और प्रोबेबिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी आप चाहते हैं तो पहले आप नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देख लो 36, और बेटर है इसको ना आप एलॉबरेट कर लो, सो दैट आपको आइडिया आते जाएगा। एक बार ज़रूर किसी पेपर में एलॉबरेट करके रखिए, सो दैट यू नो आपको आइडिया रहेगा कि क्या क्या दिया है,
2 1, ठीक है, 2 2, ऐसा करके एलोबरेट कर लीजिए, 2 6 एंड हियर 6 1 एंड दिस इज अप टू 6 6, ठीक है, ये टोटल 36 होंगे। अब है x इक्वल्स टू 0, अगर मैं 0 1 2 क्या ले लूँ, नंबर ऑफ सिक्सेस, एक बार मान लो 0 सिक्सेस आए, मतलब एक भी 6 नहीं आया, ठीक है ना, 2 डाइस जब थ्रो किया कि दोनों में 6 नहीं आया तो एक 0 होगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, ठीक है। सो जब 0 सिक्सेस लोगे तो नंबर ऑफ x हमारा 6 वाले सारे हटा दो आप, तो इट इज़ गोइंग टू बी 25, और इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो तो 25/36। सिमिलरली नंबर ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ 0 कर दो, और x इक्वल्स टू 1 जब लोगे, एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी अपने को समवेयर 10 मिलेगी, मतलब 10 होंगे नंबर्स और उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दिस इज 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा 10/36। यू कैन काउंट दिस, इसमें से आप कलेक्ट करके कर सकते हो। और जब आप नंबर ऑफ 2 हेड्स लोगे, दोनों हेड्स आएंगे तो उनके हो जाएंगे नंबर एक ऑनली, दोनों हेड तो इसमें ही आएगा केवल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू 2 की 1/36, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए इसमें, तो समेशन पी आई एक्स आई कर लेना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स विल बी सम ऑफ पी आई एक्स आई, तो आप पी आई एक्स आई कर लीजिए, 0 इंटू दिस, 0 इंटू पहला 25/36, प्लस टेबल नहीं बनाया इस बार, मैंने डायरेक्ट दिया क्योंकि इंट्रीज कम है, 3 ही है, x इक्वल्स टू 1 1 इंटू 10/36 प्लस x इक्वल्स टू 2 2 इंटू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ x इक्वल्स टू, या x 2 है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, ठीक है डियर। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो यू विल हैव 10/36 प्लस 2/36, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने को 1/3 मिल गई इस प्रॉब्लम का, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो आई बिलीव ये क्वेश्चन नंबर 12 विल बी इजी टू डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम, इजीली हो सकता है आपसे। वेरिएंस होता तो चार्ट बना के आप कर लेते, केवल एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है तो इट विल बी इजियर टू डू इट। Fine dear. So now we will have these problems which I have today discussed. So the remaining problem we will discuss in the next class dear. ठीक है। Meanwhile आपको लगता है तो you can go ahead 13 14 जो भी बाकी के sums हैं you can try. Otherwise practice these sums what we have discussed today. And first वीडियो को भी go through कीजिए अच्छे से, theory part को, और इस वीडियो को भी go through कीजिए। I will give you some problems, at least 2 to 3 problems, like 11 तो आपने को मैंने बोला है आप होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 आप जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड बिसाइड्स दिस आई विल प्रोवाइड अनदर 2 सम्स, ठीक है। तो देयर विल बी 3 प्रॉब्लम्स यू विल गेट इन होमवर्क, ठीक है। सो डू इट दीज सम्स, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इट बिकम्स वेरी सिंपल, फाइन। और एनी डाउट यू कैन आस्क, you can post your doubt also. So the remaining problems we will discuss in the next class dear. Thank you. Take care all of yourself dear. Bye.